نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ اسمیہ ہم نے کیا اور جملہ اسمیہ کے بعد ہم نے ناقص شروع کیے ہیں اور مرکب ناقص میں سب سے پہلے ہم نے مرکب ناقص کیا ہے. کون سا کیا ذرا بتائیے؟ مرکب ناقص توصیفی کیا ہے سر. مرکب ناقص میں ہم نے مرکب توصیف. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے بتائیے فٹافٹ. مرکب توصیفی کیا ہے؟ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. جس کی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور جس کی صفت مطلب جس کی اچھائی یا برائی بتائی جائے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. اچھائی برائی کمی زیادتی. ٹھیک ہے جی. کسی بھی اس کے علاوہ یہ کہ عربی زبان میں جو ہے موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں اس کا ترجمہ جیسے ہے ایک یا کوئی. ایک یا کوئی کہاں سے آ گیا؟ مرکب توصیفی آپ نے بتایا موصوف پہلے آتا ہے صرف بعد میں آتی ہے. ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ترجمہ میں صرف پہلے اور موصوف بعد. جی. مرکب توصیفی بنانے کا طریقہ کا کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں اہمیت پورا کمپلیٹ بتائیے نا. مرکب توصیفی آپ نے تو سرسری صرف بتا دیا کہ میں جو ہے وہ گوشت کی دکان پہ گئی تھی. یہ تو بتائیے گوشت میں کیا کیا لیا آپ نے؟ اچھا سر جیسے سر ہے کہ نیک لڑکا. میں آپ سے ایگزامپل نہیں پوچھ رہا بی بی. مجھے بتائیے مرکب توصیفی بنتا کیسے؟ سر اس میں موصوف جو ہوتا ہے پہلے آ جاتا ہے اور جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ اصل اہمیت سر اس کی ہے موصوف کی اہمیت ہے. ذات کی. موصوف کی اہمیت. موصوف. جی. اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی ہے. موصوف کی اہمیت ہے. تو صفت کیا کرتی ہے؟ صرف موصوف کو فالو کرے گی, اس کی پیروی کرے گی ہر چیز میں, عدد میں, جنس میں, وسعت میں, ایگزامپل میں آپ سے مجھے بنا کے بتائیے اصل چیز کیا ہے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک صفت دوسرے صفت کی, ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے, صفت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ صفت جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی ہے. یاد رکھیے گا صفت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے موصوف کی ہے, صفت کی نہیں ہے. جب بھی اگر آپ نے کسی اعراب کو بھی مرکب توصیفی میں پہچاننا ہے تو اعراب آپ اس کا کیسے پہچانیں گی؟ موصوف سے پہچانیں گی. موصوف اگر رفع میں ہوگا تو آپ کہیں گے رفع میں, موصوف اگر جر میں ہوگا تو آپ کہیں گے جر میں. جس قسم میں موصوف سے پہچانیں گی آپ. صرف کس سے پہچانی جائے گی؟ مرکب توصیفی کس سے پہچانا جائے گا؟ موصوف سے پہچانا جائے گا. صرف جو ہے وہ 100% ہر معاملات میں, چاہے اس کا اعراب ہو, چاہے اس کا عدد ہو, چاہے اس کی جنس ہو, جو بھی ہو, تمام چیزوں میں صرف کو فالو کرے گا. صرف جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی سر. اچھا جی. مرکب توصیفی ایک مرکب ہے جملہ اسمیہ کے اندر بطور آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مبتدا کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کے طور پہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کس چیز پہ دھیان دینا پڑتا ہے؟ مبتدا میں معرفہ ہوگا, اور اگر آپ یہ نہ کہیں کہ مبتدا میں معرفہ ہوگا. نہیں, مبتدا کے لیے جب استعمال ہوگا تو مرکب توصیفی معرفہ کی صورت میں ہم لیں گے. آپ یہ نہیں کہ معرفہ ہوگا, غلط اسٹیٹمنٹ ہے. الف لام بھی نہیں کہیں نا. عموماً جو ہے نا سر اپنے اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کریں, اپنے اسٹیٹمنٹ کو براڈر وے میں لے کے باندھے نہیں. کیونکہ مبتدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوگا, تو نکرہ بھی ہو سکتا ہے نا مبتدا کا بھی. جی سر. تو آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے کے باندھ دیا اپنے آپ کو.
अब आप मुझे स्टेटमेंट दें क्लियर क्या होना चाहिए। जब मुब्तदा के तौर पे मरकब तौसीफी आएगा तो ये अमूमन मारफा हालत में होगा। नहीं, फिर गलत स्टेटमेंट दे रही हैं आप, कोशिश करें अच्छा। दोबारा, फिर कोशिश करें, कोई और करे जी। बतौर मुब्तदा आएगा तो क्या करना पड़ेगा। बतौर मुब्तदा आएगा तो मुब्तदा के कवानीन अप्लाई करेंगे ना आप उस मुरक्कब पे। जी सर। सही। आप अगर आप ये कहेंगे कि मार्फा होगा तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया। सही है। जब मुब्तदा के तौर पे आएगा तो मुब्तदा के कवानीन अप्लाई होंगे, खबर के तौर पे आएगा तो खबर के कवानीन। खबर जी। ठीक है, क्लियर है। कुछ सवाल है, कोई अशकाल है तो पूछिए, तो आगे चलें। जी ठीक है सर। क्या ठीक है ये तो बताएं। आगे चले। आगे चलें, ये ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक लग नहीं रहा। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि कोई आपका इसमें सवाल तो नहीं है किसी किस्म का, किसी भी साथी का। राशिद साहब आपका, निगत साहब, जमान साहब, मंजूर साहब, राशिद साहब जी, कोई सवाल है? इस हवाले से अब तक जो पढ़ा है आपने? नहीं प्लीज। ठीक किस्म का कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट दीजिएगा मुझे बॉस। चले जी। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने मैं कहता हूँ ये लड़का, क्या लग रहा है आपको? ये लड़का मुरक्कब लग रहा है, जुमला लग रहा है कि मुरक्कब नाकिस लग रहा है? मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस। कौन सा मुरक्कब नाकिस? अच्छा, मुरक्कब नाकिस लग रहा है, क्या लग रहा है आपको इसमें? क्या है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी तो आपने पढ़ा हुआ, तो आपने टर्मिनोलॉजी बता दी ना। जिसने नहीं पढ़ा हुआ उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा इससे। नहीं, आपको नजर क्या? ये जो लगा है ये इशारा हो रहा है, लड़के हो गया। हाँ, मतलब आपको एक ऐसा मुरक्कब नजर आ रहा है जिसमें इशारा हो रहा है। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें इशारा इस्तेमाल होता है, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इशारा इस्तेमाल होता है, उसको मुरक्कब क्या कहते हैं? इशारी। जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा थे, मुरक्कब नाकिस के भी दो अज्जा होते हैं। मुरक्कब नाकिस के भी दो अज्जा होते हैं, एक इशारा, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। मुरक्कब इशारी एक ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल होते हैं, और अस्माए इशारा जिस मुरक्कब नाकिस में इस्तेमाल हो उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। मुरक्कब इशारी के कम से कम दो अज्जा हैं, एक इशारा और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की। मुरक्कब इशारी में असल अहमियत है मुशारुन इलैह की। मुरक्कब इशारी में असल अहमियत किसकी है? मुशारुन इलैह। ठीक है जी। इशारा जो है वो मुशारुन इलैह के मुताबिक लगा। जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी में सिर्फ जो है वो मौसूफ के मुताबिक लगाते हैं, तो मुरक्कब इशारी के अंदर मुशारुन इलैह के मुताबिक आप
اشارہ لگاتے ہیں. یعنی مشار الیہ اگر واحد ہے اشارہ بھی واحد آئے گا, مشار الیہ اگر مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر آئے گا, مشار الیہ اگر حالت رفع میں ہے تو حالت رفع میں آئے گا, نصب جو بھی جس طرح سے, یعنی اس کا ریورسل ہے. مرکب توصیفی کا ریورسل ہے. مرکب توصیفی میں موصوف کی اصل اہمیت ہے, مرکب اشاری کے اندر مشار الیہ کی اصل اہمیت ہے. اچھا جی, آپ کو اشارے میں نے پہلے بھی بتائے تھے, کوئی ساتھی ذرا مجھے اشارے بتا دیں فٹافٹ. میرے خیال میں 2 کلاس پہلے ہی ہم نے کیے تھے. سر اشارے بھی پہلے قریب کا اشارہ بتا دیں مجھے کوئی ساتھی. ہاذا ہاذانی ہاؤلائی. دیکھیں تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا بتائیے. سر اشارے جو ہیں یہ بھی واحد مثنیٰ اور جمع کے لحاظ سے ہوتے ہیں, اور اس میں مذکر اور مؤنث کا بھی فرق رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تو مجھے آپ دوسرے قریب کے اشارے بتائیے. جی, قریب کے اشارے جو ہیں وہ مذکر کے اشارے لے لیں آپ تو واحد کا ہاذا. کہاں سے لیں یہ تو بتائیے, جگہ تو بتائیے مجھے کہاں سے لیں. سر میرے سے ہی لے لیں. صبح کامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. جی سر واحد مذکر کا اشارہ قریب کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے, اور اس کی مؤنث ہوتی ہے ہاذی. اور اس کے مثنیٰ کے بعد میں پہلے جمع اس کے جو ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا جو اشارہ ہے وہ ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یعنی آپ نے بتایا کہ جو قریب کے اشارے ہیں وہ مذکر مؤنث کا آپ نے بتایا ہاذا اور ہاذی ہی, اور جمع کے لیے آپ نے اشارہ بتایا دونوں کے لیے ہاؤلائی. ہاؤلائی. اسی طرح سے دور کے اشارے بتا دیں. دور کے جو ہے وہ ذالکا اور تلکا, یہ مذکر مؤنث کے لیے, اور دور کے لیے اولائی کا جمع کے لیے. ہمیشہ اچھی طرح سے یاد رکھیں, قرآن مجید میں یہ 6 ہی اشارے استعمال ہیں. قرآن مجید چونکہ ہمارا بیسک سبجیکٹ ہے, ایسا سبجیکٹ ہمارا قرآن مجید ہے, قرآن مجید میں یہ 6 ہی اشارے استعمال میں زیادہ, بلکہ باقی جو مثنیٰ کے اشارے وہ ٹوٹل 2 اشارے استعمال میں, اور وہ بھی ایک اشارہ 1 دفعہ اور ایک اشارہ 2 دفعہ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. جی. اور یہ 6 کے 6 اشارے مبنی ہیں. جب مبنی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی حالت رفع جر نصب ہمیشہ ایک ہوگی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کس حالت میں ہے, اور وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو, مشار الیہ سے پتہ چلے گا. اگر مشار الیہ حالت رفع میں ہوگا تو آپ اشارے کو بھی حالت رفع سمجھیں گی. یہ اگر حالت نصب ہوگا تو آپ اس کو بھی حالت نصب سمجھیں گی, حالت جر ہوگا تو اس کو بھی حالت جر سمجھیں گی. باقی آپ کے مثنیٰ کے جو اشارے ہیں, ٹھیک ہے, ویسے وہ اشارے پڑھ دیں, پہلے قریب کے پڑھ دیں پھر دور کے پڑھ دیں. سر مذکر کے لیے مثنیٰ میں حالت رفع اور حالت نصب کا فرق ہے, نصب اور جر کا. رفع کے لیے ہاذانی, یہ مثنیٰ کا اشارہ ہے مذکر کا, اور ہاذینی, اور مؤنث کے لیے ہاتانی اور ہاتینی. ہاتانی جو ہے یہ رفع کا ہے, اور ہاتینی نصب اور جر کا اشارہ ہے مؤنث کے لیے. صحیح, زبردست. اور بعید میں زانی کا یہ مذکر کے لیے, اور زینی کا یہ نصب اور جر میں, اور مؤنث کے لیے تانی کا, اور حالت نصب اور جر کے لیے تینی کا. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی. پہلی بات تو یہ رکھی کہ مرکب اشاری کسے کہتے ہیں, ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مرکب اشاری کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں. کون کون سے؟ اشارہ, اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اشارہ مجھے بتائیے کہ اشارے کی وسعت کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ. اشارے کی وسعت کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ باللہ. ایک بات اپنی اچھی طرح سے ذہن میں نکال لیں آپ اچھی طرح سے, کہ مشار الیہ لازمن 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 معرفہ ہوگا. مشار الیہ کیا ہوگا؟ لازمن معرفہ ہوگا. لازمن معرفہ ہوگا. لازمن معرفہ ہوگا. حالانکہ مرکب اشاری کے اندر اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار الیہ. مشار الیہ کی ہے. مشار الیہ کی ہے. اشارہ تو مشار الیہ کے مطابق آپ لگاتے ہیں, لیکن چونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے, اشارہ معرفہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ مشار الیہ لازمن 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 معرفہ ہوگا.
میں دوبارہ بتا رہا ہوں، لازمن 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 معرفہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو معرفہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر مرکب اشاری نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ مبتدا کے طور پہ آتا ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں آپ جو ہے نا، آپ بہت آگے نکل گئے نا، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ صرف اس چیز کو اس طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں نا، مطابقت تو ہونی چاہیے نا. مشار الیہ کے اندر دو حصے ہیں نا. اشارہ آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے؟ اشارہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا. جی 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 اشارہ معرفہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مشار الیہ لازمن لازمن کیا ہوگا؟ معرفہ ہی ہوگا. معرفہ ہی ہوگا. بس اس پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے اندر بٹھا لینا ہے، کیونکہ اگر وہ معرفہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کوئی اور چیز بن جائے گی. کیا چیز بن جائے گی وہ بھی آپ کے سامنے بھی رکھ لیتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میرے کوئی ضروری میسج چل رہا ہے. 1 سیکنڈ دیجیے گا. آج نیٹ بھی بہت تنگ کر رہا ہے. چلیں، بارش کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ پتا نہیں سر کس کی وجہ سے. گھبرانا نہیں ہے ویسے، بس اتنا پتا ہے. چلو. میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب، جی راشد صاحب، یہ کتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کتاب جی مرکب کیا لگ اشاری. رہا ہے؟ پہلے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جملہ لگ مرکب رہا ہے اشاری. کہ ناقص لگ رہا ہے؟ ناقص. ناقص لگ رہا ہے. کون سا ناقص لگ رہا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. مرکب اشاری کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں، اشارہ اور مشار الیہ. اشارہ بتائیے اس میں سے کیا ہے؟ یہ حاضی. نہیں، اشارہ اس میں کیا ہے؟ ابھی تو اردو میں لکھا ہے نا آپ کے سامنے، عربی تو میں نے پوچھی نہیں آپ سے. یہ اور مشار الیہ کیا ہے؟ کتاب. کتاب. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ مشار الیہ کی. مشار الیہ کی. اگر مشار الیہ کی ہے تو پھر سب سے پہلے آپ مشار الیہ کو ڈیفائن کر دیں. مشار الیہ کیا ہے؟ کتاب. مشار الیہ کس حالت کی وسعت کیا ہونی چاہیے؟ معرفہ. کتاب کی عربی بنائیے، کتاب کو معرفہ بنائیے. الکتاب. آپ نے کیا کہا تھا؟ الکتاب. 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 اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا. کیا اشارہ آئے گا؟ ہاضا. سر جی تھوڑی سی کوشش کیا کریں، جس کے ساتھ پوچھے جا رہا ہے اس کو بتانے دیا کریں. آپ کو تو باری آتی ہے سر. اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سامنے والا پتہ نہیں اس کو آ رہا ہو تو بھی پھنس جاتا ہے، نہیں آ رہا ہو تو وہ نکل جاتا ہے. تو آپ دوستی نہیں نبھا رہے، آپ دشمنیاں نبھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، سب کی باری آتی ہے، سب کو موقع ملتا ہے. اس وقت بولے پلیز. ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حاضل کتاب. حاضل کتاب. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں راشد صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں یہ 2 کتابیں. حاضانی. حاضانی. الکتاب. الکتابان. الکتابانی. کتابانی. الکتابانی. 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 میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتابیں. ہاؤلائی الکتابی. کتاب. تھوڑا سن لیں غور سے اچھی طرح سے، پھر جواب دیں، جلد بازی نہ کریں. یہ کتابیں جمع ہو گیا نا یہ تو. تو کریں نا 2 سے جمع. زیادہ. کتاب کی جمع تو معلوم ہوگی نا اب تو. یہ کتابیں. جمع کی کتابوں کی جمع تو معلوم ہوگی نا آپ کو. بہت کتب. کتب. ہاں تو بنائیے بہت. ہاؤلائی الکتب. الکتب. مجھے بتائیے الکتب کے ساتھ الکتب کتاب جو ہے عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ ہاں غیر عاقل کی جمع ہے.
तो इसके आप साथ याद नहीं नस रखते ना लगेगा। बॉस, थोड़ा सा याद रखें आज ना, ही, जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा याद गलती, रखें तो mistake। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज बनाइए, अब दोबारा बनाइए। तो अब हो जाएगा, अब ये उसमें हाज़िही हाज़िही अल किताबु, हाज़िही अल किताबु, हाज़िही अल किताबु। जी ज़मान साहब, ज़मान साहब, जी सर। ये कलम, सर हाजा ही अल किताबू तो नहीं आएगा ना, कुतुबु अल आएगा ना। कुतुबु अल कुतुबु। अब मसला ये है, वो एक दफा के अंदर जमा पढ़ते हैं, एक दफा में वाहिद पढ़ते हैं, मैं क्या करूं? नहीं वो उससे उम्र में करेक्शन भी उससे उम्र में भी बहुत बड़े, और मेरे बहुत जो है वो मेरे दोस्त तो नहीं है ये, मेरे ये दोस्त तो नहीं है, मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, और पिछले मेरे ख्याल में हम 40 साल से जानते हैं। फिर भी मैं बहुत डरता हूँ क्लास के वक्त में, यकीन करो, फिर भी मैं क्लास के वक्त में बहुत डरता हूँ। चले, अल्लाह आपको खुश रखे बॉस, अल्लाह आपको खुश रखे। जी सर। जी सर। जी ज़मान साहब, ये कलम, ये कलम, जी हादल कलम, हाजा कलम, ये दो कलम, हादल कलम, हाँ, हाजानी कलमानी, हाजानी हाजानिल कलमानी। हाजानी कलमानी, ये आपको मुरक्कब लग रहा है? ये तो जुमला बन गया, ये दो कलम हैं। सर मैंने वो नून को अलिफ से मिलाया, हाजानिल कलमानी। आप अभी क्यों मिला रहे हैं? मैंने आपसे कहा अलग अलग पढ़ लेना, मुझे पता तो चले। ओके, हाजानी अल कलमानी, अच्छा, मिला के जरा पढ़े। हाजानिल कलमानी। पहले आपने हाजानिल कलमानी नहीं पढ़ा था। अच्छा, अब आप पढ़े, वो खिड़कियां, वो खिड़कियां, वो क्या खिड़कियां सर? नवाफिज, नाफिजातानी नहीं, नवाफिजु, जमा है इसकी नवाफिजु। आपने दो खिड़कियां कहा ना, वो खिड़कियां, वो खिड़कियां। जी, हाजी ही नवाफिजु, वो खिड़कियां, वो तो ये तो तिल का नवाफिजु, दिल का अल, नवाफ, देखें आप, या तो अल पढ़ लें या तिल का अल नवाफिजु, मिला के पढ़ें, तिल कल नवाफिजु, दिल कल नवाफिजु, सारा। ये तालिब इल्म मेहनती है, ये तालिब इल्म मेहनती है, ये तालिब इल्म मेहनती है। हाजा अत्तालिबु मुज्तहिदु, दोबारा अल करें, मुज्तहिदु, अल मुज्तहिदु। दोबारा करें, क्या किया आपने, क्या किया? पहले तो मुझे हाजा बताएं, ये आपको क्या लग रहा है? ये आपको नाकिस लग रहा है कि जुमला लग रहा है? सर ये जुमला है। जुमला है ना, मुब्तदा इसमें क्या है? सर इसमें मुब्तदा ये है। ये है, खबर सर क्या है? सर फिर मुब्तदा सर ये तालिब इल्म है। जी, मुब्तदा क्या है? ये तालिब इल्म है, और मेहनती जो है वो खबर है। खबर है। अब बनाइए, ये तालिब इल्म मुब्तदा है, ये कौन सा वाला मुरक्कब है? कौन सा मुरक्कब है ये? सर भी ये मुरक्कब इशारी होगा। बनाइए फिर मुब्तदा इसको। सर हाजा अत्तालिबु, अल तालिबु, हाजा, अल तालिबु, हाजा, अल तालिबु, जी, और वो सर वो फिर सर अगर वो खबर है तो वो तो अल मुज्तहिदु। सर खबर क्या होती है? सर खबर तो नकरा है तो सर फिर तो फिर आप मुज्तहिद होगा। क्या कर रही हैं?
सर मैं मुरक्कब इशारी से मिक्स कर रही हूँ। मुरक्कब इशारी तो आपका बन गया ना, Yes, ये sir. जुमला है ना पूरा। सही है सर। आपने जी। इससे पहले जुमले बनाए ना जिसमें मुरक्कब तौसीफी बतौर जी, सर। मुब्तदा या बतौर, तो यहाँ यही आइटम ठीक। यहाँ भी हो रहा है। ठीक है सर। जी सर मुज्तहिदुन। मुज्तहिदु, दोबारा गौर करें। नहीं सर मुझे तो एक मुज्तहिदुन लगा खबर था क्या है कि होनी चाहिए, नकरा से, इसलिए इसको नकरा मुज्तहिदुन कह रही बनाइए ना। हूँ। सर मैंने अलिफ लाम लगा तो फिर क्या बनेगा, वो अलिफ लाम लगा दिया तो मार्फा हो जाएगा ना। जी सर, तो मैंने मुज्तहिदुन बोला था पहले। मुज्तहिदुन, मैं जी सर। मुज्तहिदु लगा था। नहीं सर, नहीं दुन बोला है पहले। यही तो कह रहा हूँ, अगर आपने मुज्तहिदुन कहा था तो फिर मैंने गलती की। हाज़ा तालिबु मुज्तहिदुन, इसके एनालिसिस करें। सर हाजा तो सर इशारा, ठीक है, और अत तालिबु सर मुशारुन इलैह, ठीक है। और मुज्तहिदु जो है वो इसकी सिफ्त है। नहीं, क्या कर रही है सर क्योंकि सर ये नकरा आ रहा है। नहीं, क्या कर रही है आप, कर क्या रही हैं? इशादा दोबारा करें। सर हाजा इशारा, ठीक है। अत्तालिबु मुशारुन इलैह, इशारा मुशारा में मिलके क्या बने? सर मुरक्कब इशारी। ये मुरक्कब इशारी क्या बना इधर? सर मुरक्कब इशारी सर मुरक्कब नाकिस की किस्म है। बना क्या इधर? ये क्या चीज है? ये तालिब इल्म मेहनती, ये जुमला है ना? जुमला है जी सर। जुमले तो के जुमला दो हिस्से इसमें होते हैं ना? जी सर। तो ये क्या चीज है? ये तालिब इल्म क्या चीज है? मुब्तदा। तो बताएं ना, ये इशारा, ये मुशारुन इलैह, इशारा और ये मुशारुन मुब्तदा। इलैह क्या बने? सर मुब्तदा, और तब मुझे मुज्तहिदुन खबर और आपको नकरा। सिर्फ कह रही थी, काहे को सिर्फ कह रही थी। चले जी, दूसरा करें, इसी को रिवर्स कर देता हूँ और आप ही करें सारा। ये मेहनती तालिब इल्म है, ये मेहनती तालिब इल्म है। अब सर जो ये है वो इसके अंदर इशारा है और मुब्तदा है, ठीक है। और मेहनती तालिब इल्म जो है वो बन जाएगा सर मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। और मेहनती जो है सर वो सिफ्त है और तालिब इल्म मौसूफ है। बनाइए। ये मेहनती तालिब इल्म है, तो सर ये आएगा हाजा हाजा अल मुज्तहिदु। मुझे एक बात बताइए, ये मेहनती तालिब इल्म है, इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? सर इसमें मुब्तदा हाजा है। ये है ना, उर्दू में बात कर लेना पहले। जी सर। मुब्तदा ये है ये और है जी मेहनती सर। तालिब इल्म खबर है। जी सर, मेहनती ये तालिब इल्म मुब्तदा खबर। है, ये जी को सर, ये मुब्तदा बनाइए, क्या बनाया आपने? हाजा। हाजा। अब जी खबर सर। क्या है? खबर सर मेहनती तालिब इल्म। मेहनती तालिब इल्म, मुझे बताइए मुफरद है क्या मुरक्कब है? सर मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी आपने बनाना है, बतौर खबर क्या बनाएगा? नकरा। बनाइए फिर। तो सर ये बनेगा तालिबुन मुज्तहिदुन। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रही है इतनी देर से? आपकी कंफ्यूजन किस जगह पे, ये मुझे बताइए। सर वो सेग्रीगेट सेपरेट, जैसे ये इशारी है, ये करना है ना तौसीफी है सर, आपने। उसमें जी सर। जी सर। सेपरेट करेंगी तो होगा ना। जी सर, एनालिसिस के लिए सेग्रीगेट। ठीक है जी, जी चले सर। जी, कोई मसला नहीं है जी। मंजूर साहब जी, ये कुर्सी टूटी हुई है, ये कुर्सी टूटी हुई है। टूटी हुई को कहते हैं मकसूर। ये कुर्सी टूटी हुई है। मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? एक मिनट बनाई, मैं एक मिनट आया। हाज़ल कुर्सी मकसूरुन।
जल्दी जल्दी बता दें कोई और भी। इसके जिन्स का ख्याल रखें, कुर्सी की जिन्स हाजा को देखें। कुर्सी मुजक्कर है कि मुअन्नस है, ये भी तो सोचें पहले। या मुजक्कर है। मुजक्कर है ये कुर्सी। मुअन्नस है। नहीं नहीं, कुर्सी तो मुअन्नस मुजक्कर है। होती है, मुजक्कर है और- कुर्सी। टॉस कर ले। अच्छा नहीं इनके यहाँ जो कुर्सी है ना वो इनकी बेगम की है। बेगम इनकी मोहन्नस है। मंजूर साहब हाजल कुर्सियो मकसूरतुन। गलती नहीं करें, अलग अलग पढ़े, बड़ी मेहरबानी। हाजा जी, कुर्सियो मकसूरुन। देखिए एक मिनट देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख नहीं रहा हूँ, मैं जबानी इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ किस सेंस में आप लोग उसको समझ पाते हैं। दोबारा मेरा सवाल सुने, ये कुर्सी टूटी हुई है, मुझे पहले उर्दू में बता दें इसमें मुब्तदा क्या और खबर क्या है। ये जो है ये क्या है? हाजा, मैं आपसे उर्दू में पूछ रहा हूँ, अरबी तो मैं मांग ही नहीं रहा आपसे। ये कुर्सी टूटी हुई है, मुझे बताएं इसमें मुब्तदा क्या और खबर क्या है। ये कुर्सी ये कुर्सी क्या है? मुब्तदा, मुब्तदा। और खबर क्या है? टूटी। टूटी। मुझे ये बताइए कि जो मुब्तदा है ये मुरक्कब है क्या मुफरद है? ये मरकब इशारी। मेरा सवाल सुने, सवाल का जवाब दें, आगे मत बढ़े। मुब्तदा जो है ये कुर्सी, ये मुफरद है कि मुरक्कब है? मुफरद। मुफरद है। हाजा कुर्सी मरकब है ना। आप अरबी में क्यों जा रहे हैं? ये कुर्सी मरकब, ये कुर्सी मुरक्कब है कि मुफरद है? मरकब कौन सा मुरक्कब है? इशारी। इशारी। अब मुझे बताइए ये कुर्सी इस जुमले में बतौर क्या आई है? मुब्तदा। मुब्तदा। अब मुब्तदा है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी एक मुरक्कब है, मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब इशारी बनाइए मुब्तदा के तौर पे, क्या बनेगा? हाजा कुर्सी। देखिए दोबारा पढ़िए, गौर से पढ़िए, या तो आप लोग बीच में लफ्ज खा जाते हैं, इससे मैं कंफ्यूजन हुई। अलग अलग करके पढ़ लें, पढ़े हाजल अलग हाजल अलग पढ़ लें। हाजा हाजा अल कुर्सियो, अल कुर्सियो, हाजा अल कुर्सियो, हाजा अल कुर्सियो। मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा हाजल कुर्सियो। जी। खबर लेके आए, मकसूर मकसूरुन। मकसूरुन, मकसूरुन। जी जमान साहब, ये कलम सियाह है। फिर इसमें ये जो है ये मुब्तदा है और कलम स्याह है, ये खबर है। दोबारा गौर करें, दोबारा करें तो ये कलम जो है ये मुब्तदा है और स्याह है ये खबर है। पहले आपने कलम सियाह को खबर कैसे किया था? सर वो स्याह कलम मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। सियाह कलम, मैंने तो आपसे ये तो कहा ही नहीं ना कि ये सियाह कलम है, मैंने तो आपसे क्या कहा था? ये कलम स्याह है। तो फिर मुब्तदा से सही बनाए, अब बनाइए। जी। हाजल कलम, हाजल कलमु, कलम जो है सौदाव। सौदाउ। कलम मुझे बताइए, आपके घर पे भी तो पेन मुन्नस नहीं है? आपके घर पे भी पेन आपकी बेगम का तो नहीं है? अस्वद, अस्वद। अस्वदु, सर वैसे अस्वदु। हर घर में ऐसे ही है। ऐसे ही है, मेरे घर में नहीं है ऐसा। निगल जी, जी सर। वो दरवाजा बंद है। वो दरवाजा मुरक्कब इशारी होके मुब्तदा हो जाएगा, बंद है उसकी खबर हो जाएगी। वो दरवाजा, जालिका अल बाबू। ठीक है, जालिका अल बाबू मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जालिकल बाबू। ठीक है,
बंद है, मुगलकुन मुगलिकुन। राशिद साहब, वो खिड़की खुली है। वो खिड़की खुली है। कौन से राशिद साहब भाई? अच्छा राशिद साहब करते हैं, एक कराची दफा वाला एक करते से, हैं, अगली दफा दूसरा कर लेना। चलो आप ही कर लें राशिद साहब। वो खिड़की खुली है। तो इसमें जो वो खिड़की है वो आपका, डर गया मैं जी, मौसूफ और खुली है। वो खिड़की खुली है। किसकी अरबी नहीं आती? खिड़की की नहीं आती, खुली की नहीं आती। अभी तो मैं उसको वो कर रहा था कि दो हिस्सों में। ठीक है, जी। वो खिड़की खुली है तो इशारा नहीं, इशारा तो वो खिड़की हो गया, वो खिड़की इशारा, वो खिड़की इशारा हो। वो खिड़की खुली है, ये मुरक्कब है कि जुमला है? वो जमला। तो जुमले के दो अज्जा होते हैं ना, मुब्तदा बताइए, खबर बताइए। मुब्तदा जहन में नहीं आ रहा मुब्तदा का। वो खिड़की खुली है, मुब्तदा वो खिड़की है तो और खुली है खबर। बताइए बनाइए। खिड़की वो खिड़की तिल की मुअन्नस हमारे घर में। अरे आप बनाए तो सही बॉस। तिल का कुर्सी की अरबी ढूंढ रहा हूँ। कुर्सी कहाँ है? अल कुर्सी है यार। हाँ, खिड़की की। मैंने तो आपसे पूछा नहीं आती, मैं आपको अभी दे रहा हूँ ना, क्या मसला है? खिड़की कह रही है नाफिज़त दिया बनाइए। तिलका अल-नाफिज़तुन अल-नाफिज़तु। ठीक है, खुली। ये सारे अल्फाज वो हैं जो बहुत दफा हम लिख चुके हैं, अब आप लोगों को याद होने चाहिए। खुले को कहते हैं मफ्तू। मुफ्तू नहीं, मफ्तू। जी, मफ्तून। जी राशिद साहब, दूसरे वाले, वो तालिब इल्म मेहनती है। वो तालिब इल्म मेहनती है। वो तालिब जो है, ये हो गया आपका मुब्तदा। ठीक है, और मेहनती है ये इसकी खबर है। ठीक है, बनाइए। वो तालिब इल्म, वो हो गया ज़ालिका अत्तालिबु मुज्तहिदुन। राशिद साहब, आपने जो पिछला जुमला बनाया था उसके जी अंदर आपने खबर जो है, मैं आपसे नहीं कह रहा, भाई साहब से कह रहा, उसका जी। आपने खबर मफ्तूहुन क्यों किया? मफ्तूहु क्यों किया था आपने? नकरा के मफ्तूहुन तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे बताइए कि मुब्तदा आपका क्या था? मुरक्कब इशारी था? मुरक्कब इशारी था। मुरक्कब इशारी में असल अहमियत किसकी होती है? मुशार अलैह। तो मुशारुन अलैह मुज़क्कर था कि मुअन्नस था? मुअन्नस। तो खबर क्या आनी चाहिए थी? मुअन्नस आनी चाहिए। तो बताइए क्या होगी खबर? मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन। आबिदा जी, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वो दरवाजे बंद हैं।
सर हाजा हाजा अल अवा अल अल अबाबू अब्बाबू, हाजा अल अब्बाबू, हाँ मुगलिकतन मुगली मुगलिकतन तुन मुगलिकातुन। मुगलिकतुन अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा ये दरवाजे बंद हैं कि वो दरवाजे बंद हैं? वो। और दूसरी बात मुझे बताइए कि जो दरवाजे हैं ना, आकिल है कि गैर आकिल है? सर गैर आकिल है। तो गैर आकिल है तो इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? तिल का वाहिद मुन्नस का इस्तेमाल होगा। कौन सा जी इशारा सर, होगा? वाहिद मुन्नस का। मुन्नस का। देखिए जब मैं आपसे अगर कोई सवाल पूछूं तो अगर गौर से अगर सुन लेंगे ना तो आप लोगों को आगे जाके आसानियां होंगी। मैं आपसे सवाल पूछूं इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा, आपने कहा तिल का, जवाब सही है आपका, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब ताकि आपको मुझे तो पता है आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपने रटा हुआ है कि कंसेप्ट क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। मेरी क्लास चल रही है, अभी एयरपोर्ट पे ही हो ना? तो एक्चुअली मेरी फैमिली आ रही है, वो अभी इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा सा फंसा हुआ था। जी सॉरी। आबिदा जी एक और करें आप। वो आदमी लंबा है। वो आदमी लंबा है। जालिकल अर्रजुलु तवीलुन तवीलुन, जबरदस्त, तवीलुन, जबरदस्त। सारा जी, ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। जी सर, ये मेहनती तालिब इल्म गौर खड़ा से है। सुनिएगा और गौर से समझिएगा इसको। ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। मुझे बताइए इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? सर इसमें मुब्तदा ये मेहनती तालिब इल्म। ठीक है, ये मेहनती तालिब इल्म मुब्तदा है। मुझे जी बताइए सर। मेहनती तालिब इल्म जो है ये मुफरद है कि मुरक्कब है? सर ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब सर मेहनती तालिब इल्म, सर ये मुरक्कब तौसीफी है। है? सर मेहनती है। ये भी तो लगा हुआ है। जी सर ये भी लगा हुआ है। तो सर फिर मुरक्कब मुरक्कब इशारी की क्या तारीफ की थी हमने? सर इशारी है। मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी के अंदर मुझे बताइए इशारा क्या, मुशारों ने लेके है? सर इसमें इशारा जो है वो सर ये जी, और मुशारों ने लेके है वो मेहनती तालिब इल्म। मुझे बताइए मुशारों ने ले जो है मुफरद है कि मुरक्कब है? सर वो मुरक्कब है। हाँ, अब बनाइए। तो सर ये आएगा हाजा 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 जी, तालिबू। गाड़ी गई। नहीं सर मैं सोचने लगी। हाजा अत्तालिबू ये आएगा अल मुज्तहिदु। अच्छा खासा तो बना रही है, घबराती क्यों है? सर मैं वो रूल्स अप्लाई करते हुए सोच रही हूँ ना कि किस पे देखिए ज्यादा सोचना नहीं है, डोंट थिंक टू मच। ओके सर। हाजा अत्तालिबु अल मुज्तहिदु और फिर सर खबर नकरा है तो कायमुन। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने चीज नोट की, अब तक आपने जितने जुमले बनाए उसके अंदर मुरक्कब इशारी क्या बन के आया बतौर? मुब्तदा। मुब्तदा। मुरक्कब इशारी हमेशा याद रखिएगा मुब्तदा बन के आएगा, खबर बन के मुरक्कब इशारी नहीं आता। ठीक है? जी सर। मुरक्कब इशारी क्या बन के आता है?
मुब्तदा मुब्तदा बन बन के आता है, खबर बन के नहीं आता है. चले जी समीना जी, जी सर. आखिरी आपसे कर लेते हैं, आखिरी आज का. ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है. सर ये मेहनती तालिब इल्म ये मुब्तदा है. ठीक है, ये मुब्तदा है. मेहनती तालिब इल्म क्या है? मुब्तदा. नहीं, ये और मुब्तदा है. दोबारा बताएं क्या कह रही हैं आप? ये मैं कह रही हूँ मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है. तो ये मेहनती तालिब इल्म को मैं कह रही हूँ मुब्तदा है, ठीक है, और सच्चा मुसलमान है खबर है इसकी. ठीक है, बनाइए. अब तो आसान हो गया. हाँ मेहनती तालिब हाज़ल मुज्तहिद. वो तो सामने ही बना हुआ है. जी बिल्कुल. हाजा तालिबु अल मुज्तहिदु. मिला के पढ़ें. हाजा तालिबुल मुज्तहिदु. जी, हाज़त तालिबुल मुज्तहिदु सच्चा मुसलमान है. मुस्लिमुन सादिकुन. मुस्लिमुन सादिकुन. मुस्लिमुन सादिकुन. जबरदस्त. तो सर जी क्लियर हो गया आपको? सर मेरे एक ख्याल मुझसे में भी करवा लो. आपसे भी करा लें, आप भी कर लें, खुद से कर लें. चलो कुछ भी. चलें आप करें. वो दोनों खिड़कियां बंद हैं. वो दोनों खिड़कियां बंद हैं. अच्छा वो जो है ये वो दोनों खिड़कियां. अच्छा वो दोनों खिड़कियां जो हैं ये मुब्तदा है. वो ठीक है. इशारा और दोनों खिड़कियां मुशारुन अलैह की मिलकर मुरक्कब से इशारी बने और मुब्तदा वो हो गए. बनाइए. और बंद है खबर है. अच्छा ठीक है, वो दोनों खिड़कियां जो है वो मुअन्नस होता है. तो और ये बईद लगेगा तो ज़ानिका हैं. खिड़कियां भी आपने कहा कि मुअन्नस हैं, मुअन्नस है. तो फिर मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल होगा ना. क्या ख्याल है? तानिका, सॉरी तानिका लगेगा. ठीक है, तानिका. तानिका और ये नाफिजा की जो मुसन्ना होगा वो नाफिजतानी. 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 तानिका नाफिजतानी. अच्छा सर अल भी तो लगेगा ना. अल नाफिजतानी. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ. जी तानिका अल नाफिजतानी. और फिर बंद की अरबी बंद को कहते हैं मुगलक. मुगलकुन. तो ये मुगलकतानी हो जाएगा क्योंकि वो भी वो है. जी, मुगलकतानी. मुगलकतानी. जी कोई सवाल, कोई अश्काल? बहुत आसान है, कोई इसमें इतना मुश्किल वाला काम नहीं था. क्या ख्याल? जी बिल्कुल. जमान साहब कोई मुश्किल तो नहीं थी इसमें? सर एक क्वेश्चन हम पूछ लें सिर्फ क्लैरिटी के लिए. पूछ ही लें आज आप. थैंक यू. ये जो हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये मेहनती तालिबे इल्म है तो ये इशारा हो गया. मेहनती तालिबे इल्म को हम इशारुन इलैह बना रहे हैं. बनाने में है. तो अगर आयत में ये इस तरह से आएगा तो हम पहले मेहनती तालिबे इल्म को मुरक्कब तौसीफी बना के फिर उसे मिशारुन अलैह बनाएंगे. देखिए आपका काम जो है वो ग्रामर बनाना तो है ही नहीं. आपसे जुमले तो सिर्फ इसलिए बनवाते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया होते हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको जुमले बनाने वाले सारे सब्जेक्ट खत्म होते जाए. सिर्फ ये होता है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर. आप जब अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि आपका बुनियादी ऑब्जेक्टिव जुमले बनाना तो है ही नहीं ना. आपका असल ऑब्जेक्टिव कुरान को समझना है ना. कुरान में तो इस किस्म की कोई आयत आपको नहीं मिलेगी
हादिर तालिबुल मुज्तहिद, ऐसी कोई आयत मिली है आज तक? नहीं। कोई भी नहीं मिली है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर, आखिर में अल्टीमेटली तो हमने कुरान की आयत की तरफ जाना है, तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, मगर वो एनालिसिस करने में तो समझ में आएगा ना हमें। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वो जो आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस आयत का अगर आप जो करेंगे तो आप इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? आप कहेंगे हाजा जो है वो इशारा, अत-तालिबुल मौसूफ, अल-मुज्तहिदु सिफ्त, मौसूफ और सिफ्त मिलके जो है मुशारुन इलैह, इशारा और मुशारुन इलैह मिलके मुब्तदा, और ये खबर। मुब्तदा और खबर सर हम ऐसे करते कि इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुरक्कब इशारी बने, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बना और फिर वो खबर है। वो तो आप और भी कुछ कर सकती हैं, इशारे के अंदर भी कर दें, इशारा करीब मुज़क्कर। ऐसे तो आप जितना डिटेल में जाना चाहें जाएं, वो तो जितना देखें आप, जितनी बारीकियों में जाएंगे बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। असल चीज ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक दफा आपके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, फिर आपके लिए इन चीजों को करना कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप चीजों को रटेंगे ना तो आप फंस जाएंगे, रटने वाली चीजें फंस जाएंगी। दो मुरक्कब आपके हो चुके, ठीक है जी। मुरक्कब तौसीफी हो गया, मुरक्कब इशारी हो गया, उसको हमने जुमलों में भी इस्तेमाल किया। एक्सरसाइज मैंने भेजी है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यकीनन की होंगी इंशाअल्लाह। जी किए हैं सर, बस की हैं तो बस बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने भेजी है, बाकी ने तो भेजी नहीं है। हाँ सर, वो आपने तो वो भी भेज दिया ना सॉल्यूशन। जवाब भी भेजिए, लेकिन आप तो कोशिश करें ना। जवाब तो मैं इसलिए भेजता हूँ कि अगर ना भी किया हो किसी ने तो चलो मैं तो अपना फर्ज पूरा कर लूँ। सर हम भी कर देंगे चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हम मुरक्कब शुरू करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मुरक्कब है। इतना इंपॉर्टेंट मुरक्कब है कि उसके बगैर कुरान मजीद की कोई आयत मुकम्मल नहीं होती है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मुकम्मल नहीं होती है, कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं जिसमें मुरक्कब ना हो। लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि ये सारी चीज़ों को जहन में होना चाहिए। इन मुरक्कबात के हवाले से चीज़ें जहन में होनी चाहिए, जुमले के हवाले से चीज़ जहन में होनी चाहिए कि मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होती है, मुब्तदा की क्या कंडीशन है, खबर की क्या कंडीशन है, मुरक्कब तौसीफी में किसकी अहमियत ज़्यादा है, उस अहमियत को जहन में रखते हुए कौन किसको फॉलो करता है, मुरक्कब इशारी में किस चीज़ की अहमियत है। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। आप लोग के जहन में ना हो, किसी कागज में नोट डाउन करके उसको लिखें, ताकि जब आप पढ़ें, अपनी पढ़ाई करें, क्लास में बैठें, आपके सामने चीज़ मौजूद तो आप भटकेंगे नहीं और परेशान नहीं होंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको मजीद एक्सरसाइज भेजूंगा, उनको आप कीजिएगा। कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जिन लोगों ने मिस किया है वो उसको देख सकेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कोई साहब कुछ कह रहे थे? अनवर मैं कह रहा था कि कौन सा मुरक्कब अतफी या मुरक्कब इजाफी जारी बता, ताकि हम एक अगर मौका मिले तो हम थोड़ा सा पढ़ लें। अभी आप सिर्फ वही करें जो आपसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो आप पढ़े चुके हैं, जो आगे पढ़ना है उसको छोड़ दें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।